Good morning, friends. Chapter 12 Heron's formula. Now, area of right triangle, triangle ABC. Now, triangle ABC. What is the area of right triangle? Okay, one angle is 90 degree. In triangle ABC, so one angle is 90 degree. One angle is 90 degree. Right, this is called as a right triangle. So what is the formula of area of right triangle? 1 by 2 base into height. 1 by 2 base into height. BC is a base, AB is a height, and now AC is a hypotenuse. AC is a hypotenuse. Is this clear? AC is a hypotenuse. Now first number question, the base and hypotenuse of a right angle. Right angle means one angle is 90 degree. Right angle are respectively 5 centimeter and 30 centimeter long. Finds area. So what is the formula? Draw the triangle. Now triangle ABC, A, B and C. One angle is 90 degree. Y is a right angle. Now base. Base is a 5 centimeter. BC is a base. And now hypotenuse. AC is a hypotenuse. Is a 13 centimeter. Find the area. तो 1 by 2 base into height AB. हाइट नहीं, हाइट फाइंड करने क्या करो? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर. नाउ ट्राइंगल hypotenuse square equal to sum of the two side square. Now triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Now AC square, hypotenuse square equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. AC is a 13 square equal to AB square. Now BC is a 5 square. 169 equal to AB square plus 25. So now AB square equal to 169 minus 25. So now AB square equal to 144. तो AB equal to 12 सेंटीमीटर. हाइट मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर. अब एरिया फाइंड करना. तो area of right triangle, a right angle triangle ABC equal to 1 by 2 base into height. 1 by 2 base is a BC 5. Now height is a 12 centimeter. Okay, 2 6 are 12. So 5 into 6, 5 6 are 30 centimeter square. So what is the answer? Area of right triangle 30 centimeter square. Is it clear? हो गया clear? अब now next triangle is equilateral triangle. Equilateral triangle. If equilateral triangle have all sides are equal. All sides are equal. Equilateral triangle have all side and all angle are equal, being 60 degree. 60 60 and 60. Sum of the triangle equal to 180 degree, right? Equilateral triangle means an equilateral triangle have all sides and all angle are equal, is called as equilateral triangle. And now triangle ABC, equilateral triangle is side A, all side equal, small a, and these are the small a BC. कि AB equal to BC equal to AC equal to small a, all side are equal. अब now ड्रॉ किया है बेटा कि AD परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर BC. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. देन AD बाइसेक्ट BC. बाइसेक्ट कौन कर रहा है बेटा? AD बाइसेक्ट कर किसको कर रहा है? BC को कर रहा है, राइट? हो गया क्लियर? तो ना बाइसेक्ट मीन्स हाफ होगा. तो ना BD इक्वल टू BD A by 2 and DC is also A by 2, right? Bisect. Now therefore BD equal to DC equal to 1 by 2 BC. 1 by 2 BC. BC is a small a, to equal to A by 2.
राइट, ए बाई टू। अब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो हमारे पास 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड है बेटा, ये राइट एंगल के लिए बेस तो मिल गया आपको बीसी, पर एडी नहीं है, तो एडी फाइंड करने के लिए ट्राइंगल है कि नाउ ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल कब यूज करना है, टू साइड है आपके पास, कि टू साइड है, थर्ड साइड फाइंड करना है, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना, ठीक है। कि नाउ ए डी फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, तो एंगल डी इक्वल 90, नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, सी डी स्क्वायर इज ए बाई टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर होल ए बाई टू होल स्क्वायर, ना माइनस लोग ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, प्लस है तो माइनस साइन, अब एलसीएम ले लो, इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, नाउ ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बाय 4, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बाय 4, अब नाउ ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए अपॉन 2, रूट कर दो बेटा, रूट 3 ए स्क्वायर तो ए एंड रूट 4 तो 2, तो ए डी इक्वल टू रूट 3 के रूट 3 ए डिवाइड बाय 2, राइट। एल्टीट्यूड मिल गया, ये हाइट है, मीन्स हाइट मिल गया आपको, राइट। अब एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना है, कि एडी ये हाइट मिल गया आपको इक्वल टू हाइट। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, तो बेस क्या है बेटा 1/2 बेस, बेस इज स्मॉल ए एंड नाउ हाइट इज हाइट हमने फाइंड किया रूट 3 स्मॉल ए इंटू हाइट इज रूट 3 इंटू ए बाई 2, ए इंटू ए स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। हो गया क्लियर, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइड स्क्वायर, तो रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर और करके, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स ए क्या था हमारी साइड ही थी, राइट, कि ए साइड 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 ए बी बी सी और ए सी, तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए, एल्टीट्यूड मीन्स एडी जो हमने फाइंड किया हो, क्लियर हो गया, एडी रूट 3 अपॉन 2 ए मीन्स क्या है साइड, एल्टीट्यूड की फॉर्मूला क्या होगा रूट 3/2 इंटू साइड, दोनों फॉर्मूला याद रखना, कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हो तो इसकी फॉर्मूला क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/2 इंटू ए। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप देख लो क्लियर हो जाए। अब नाउ उसके सम करते हैं एरिया, कि फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना है हैविंग अ साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड आर इक्वल, राइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इक्वल टू √3/4 इंटू साइड इज 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। तो इक्वल टू √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई तो 20 इंटू 5, तो क्या इक्वल टू 20 5 100, तो 100√3 सेंटीमीटर क्या आएगा cm स्क्वायर। हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो क्या है एरिया के एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड altitude of equilateral triangle equal to √3/2 into side कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर पर एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/2 इंटू साइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड इक्वल टू √3/2 साइड इज 20, तो कट कर दो बेटा 10 2 20, तो 10√3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 10√3 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड है और एरिया क्या है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इज इट क्लियर? दो क्लियर हो गए ट्राइंगल का एरिया, एक राइट ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नाउ नेक्स्ट इज आइसोस्केल ट्राइंगल। Isosceles triangles means an isosceles triangle have two equal sides. Equilateral में क्या था all sides are equal थी। Isosceles triangle have two equal sides and two equal angle. Two equal side and two equal angle. This called as isosceles triangle. In triangle ABC, be an isosceles triangle with the base A and equal side small b. Base small a. And now side equal BB, both side are equal, this side and this side. Okay, now draw AD perpendicular BC, then AD bisect BC. AD क्या AD ड्रॉ किया है कि AD परपेंडिकुलर BC, BC को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तब उसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या आएगा BD इक्वल टू BD इक्वल टू CD इक्वल टू A/2 के BD इक्वल टू CD इक्वल टू A/2। ये ट्राइंगल बेस तो मिलकर आपके पास हाइट नहीं है, राइट। तो हाइट फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे AD के। नाउ ट्राइंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस इज AC स्क्वायर के। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC इज a B स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD इज a A/2 होल स्क्वायर। तो नाउ AD स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लो तो इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 AD स्क्वायर। तो नाउ AD इक्वल टू स्क्वायर रूट 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2। इज इट क्लियर?
तो बेटा इसका रूट नहीं लिख सकते, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करें 2b², 2b माइनस है, नो बेटा माइनस और प्लस है साथ में ही, ठीक है, लेकिन होल आएगा ये, इसका रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट एडी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4b² माइनस a² बाय 2, हाइट मिल गई। अभी क्या फाइंड करना है आपको, एरिया, तो एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है, स्मॉल है, हाइट हमने फाइंड किया एडी, स्क्वायर रूट 4b² माइनस a² अपॉन 2 इक्वल टू स्मॉल है स्क्वायर रूट 4b² माइनस a², 2 2 जा 4, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर रूट 4b² माइनस a² बाय 4, इज इट क्लियर? B is a equal length and small a is a third length of third side, हो गया क्लियर है? अब उसके सम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल हैविंग बेस, ड्रॉ कर रहा हूं फिगर। नाउ ट्राइंगल ए बी सी, आइसोस्केल ट्राइंगल बेस इज अ 2, बेस 2 सेंटीमीटर दिया है। Now length of, find the area of isosceles triangle having base is 2 centimeter. Length of one of the equal side means two side equal, this is called isosceles for 4 centimeter. Altitude is a d, AD, ये 2 है तो 1 और 1 हो गया क्लियर। AD फाइंड कर दो, 1/2 बेस इंटू एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इज a BC and height is a AD, तो नाउ BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC/2, लेट 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB एंगल D इक्वल टू 90, तो ना हाइपोटेनियस इज AB² इक्वल टू AD² प्लस BD², AB² इज a 4² इक्वल टू AD² प्लस BD² इज a 1², 4² 16 इक्वल टू AD² प्लस 1² इज 1, तो नाउ AD² इक्वल टू 16 माइनस 1, तो AD² इक्वल टू 15, नाउ AD इक्वल टू स्क्वायर रूट 15, क्लियर हो गया? AD 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर AD। अब एरिया बनेगा, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 के एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्वल टू 1/2 बेस इज a BC, height is a AD, तो now equal to 1/2 BC 2 centimeter and now AD is a square root 15, 2 cut, तो आंसर इज a square root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, हो गया क्लियर? Now area of right triangle,
एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट. राइट ट्राइंगल ए बी सी, the one angle is 90 degree, right? 1/2 base into height. A base, height or hypotenuse. Now area of equilateral triangle, तीसरी फॉर्मूला क्या थी, √3/4 into side square. All side are equal and all angle are equal. And now altitude of equilateral triangle, तो √3/2 into side. अब area of isosceles triangle, तो 1/2, two side are equal, 1/2 base into height. हो गया क्लियर?